قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مولا ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا مولانا العباس. اولا خدا سے گزارش ہے، ایک بار سورہ ہم تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بچوں پہلے چار معصومین علیہ السلام امیر حیدر صاحب مرحوم، ابن دلدار حسین خان صاحب مرحوم کی روح کو احساس کرنا. بلند ترین صلوات اللهم وآل محمد. عزیزان گرامی، قدر بزرگان قوم، نوجوان دوستان عزیز، مرحوم کی وصیت تھی اس لیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ورنہ مولانا عسکری صاحب، مولانا فیروز صاحب موجود تھے. انشاءاللہ یہ لوگ پڑھتے ہیں، مگر مرحوم کی وصیت تھی اس لیے میں خطاب کر رہا ہوں. اور عنوان میں نے صادق علیہ محمد علیہ السلام کا یہ فقرہ مولانا نے مجلس کے طور پر سرنامہ سخن قرار دیا. وعلیکم السلام جناب. گزشتہ سال محرم میں نے سرکار بابو الہوائے کے سلسلے سے کئی مجلسیں پڑھی تھیں کہ مرحوم اس مجلس میں شریک تھے. تو ایک مجلس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اس مجلس کو آپ پھر پڑھیے گا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ مجلسیں تو کئی پڑھی، کبھی وہ شریک نہیں رہے، کبھی موضوع دوسرا رہا. تو میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر سرکار بابو الہوائے کا تذکرہ ہو جائے تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے. مرحوم بہت، آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں، خیر ہم سے تو بہت محبت کرتے تھے. یہ نفیس بھائی بیٹھے ہیں، ان سے فیروز بہت زیادہ ہی محبت کرتے تھے اور بہت نیک تھے، بہت اچھے. نیک اور اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مرحوم کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے، کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی بات ہوتی بھی تھی تو منہ پہ، چاہے ہماری بات ہو یا آپ کی بھی کہہ دیتے، اپنی بھی بات کہہ دیتے تھے، دوسری کی بھی کہہ دیتے تھے. اور خوش مزاج تھے. رنوں سے ڈگیاں تک برادری میں کہیں بھی ملنا جلنا رہے، کیسا بھی مجمع رہے، محفل رہے، مجلس رہے، لوگ رہیں، تو روتے ہوئے آدمی کو ہنسا دیتے تھے. ایک ان کی صفت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مغموم آدمی ہے، اگر وہ پہنچ جائیں تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ آدمی اپنا غم بھول جاتا تھا. یہ سب کوالٹی تھی ان کے اندر. اور کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے. اگر وقتی کسی سے، فطرت انسانی ہے، ناراض بھی ہو جاتے تھے تو وقتی ناراض ہوتے تھے. بہت سی کوالٹیاں تھیں. ان کے مر جانے کے بعد دیکھیے بہت سے لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں. کافی مومنین شریک جنازہ ہوئے اور ہم لوگوں کو بھی بہت دکھ ہوا کہ کوئی بھی وقت رہے، کوئی پروگرام رہے، کبھی بھی کسی وقت بھی بھائی فون کر دیا جائے
तो 10-10 बजे रात में साहब यहाँ से बिस्मा को पहुंच जाते थे। बरसात के मौसम में भी, कैसा भी मौसम रहे, जाड़े का मौसम रहे, कोई आए ना आए कनौरिया से, वो जरूर आ जाते थे। तो एक मोहब्बत थी और आबा-ओ-अजदाद से, बुजुर्गों के ज़माने से भी ताल्लुकात इस घराने से रहा है हम लोगों को। एक और सवाल पढ़ें आप हज़रात। और एक गुजारिश आप लोगों से ये है, ये उलमा भी मज़ीद ऐलान कर चुके हैं और हम भी ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग देखिए, हालात नागुफ्ताबे हैं, हालात नासाजगार हैं। क्योंकि ये बीजेपी हुकूमत शिद्दत से, और इसके ऊपर इसराइल, अमेरिका और सहयूनी ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें, ये सब जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, इन्होंने हमारी आज़ादारी को टारगेट किया हुआ है। लिहाजा हम अपनी आज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ करें। वैसे तो असली साहिब अज़ा फंसे गैब हैं, खुदा इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजिब फरज। हम लोग तो एक खिदमत गुजार हैं अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा के, एक खादिम हैं, एक नौकर हैं हम लोग इन मजलिसों के, रज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो आप लोग जो ये ऑनलाइन जो सिस्टम रखे हैं, इससे परहेज करिए। मजलिस में मकसद पूरा होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। सही बात है, अच्छी बात। एक चीज, दूसरी चीज, तमाम उलमा ने ये ऐलान कर दिया और मैंने अपने इलाके में भी कहा था, मगर लोग बातें नहीं सुनते। हर आदमी चौधरी बनता है, हर आदमी चाहता है कि हम ही को लोग नेता समझ लें। ये मसला कौम का है, पूरी मिल्लत का मामला है आज़ादारी का, ये पर्सनल किसी का मैटर नहीं। जब तमाम उलमा ने ये ऐलान कर दिया कि आप पुलिस की मीटिंग में न शरीक हों, तो फिर क्यों थाने पे लोग जा रहे हैं? हर जगह से ये बयान आ रहे हैं। डीजीपी ने जो बयान दिया है, बताइए, डीजीपी पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस का मालिक होता है। सबसे बड़ी पोस्ट सूबे की जो होती है पुलिस विभाग में, वो डीजीपी की होती है। और उसका लेटर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसने जो बदतमीजियां की हैं शियों के खिलाफ, आज़ादारी के खिलाफ, अब उसे मकसद नहीं है यहाँ पर दोहराना। तो यानी डायरेक्ट ये इस्लाम दुश्मन ताकतों का हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, करवाया जा रहा है हमला। तो हमारे तमाम शिया उलमा ने पूरे हिंदुस्तान से ये ऐलान किया है कि डीजीपी अपने बयान को वापस लें और माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे डीजीपी, हम लोग पुलिस की किसी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। इसलिए कि कोविड-19 का पालन जो है शियों से ज्यादा किसी कौम ने नहीं किया, सबसे ज्यादा हमने पाबंदी की है। और उसके बाद भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, यानी ये इस्लाम दुश्मन ताकतें लगी हुई हैं हमारे खिलाफ। लिहाजा इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम मजलिसों का एहतमाम करें, सारी चीजें करें, एहतियात के साथ करें कि दुश्मन उसका फायदा न उठाने पाए। यानी हमारा काम भी हो जाए, शोर शराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक उलमा के बयान नहीं आ जाते, आप लोग पुलिस की किसी मीटिंग में आज के बाद शिरकत न कीजिएगा। इसलिए कि ये पूरी मिल्लत का मसला है, एक आदमी का पर्सनल मैटर नहीं है। एक आदमी का किसी का शख्सी मामला होता तो ठीक है भाई, आप खुद मुख्तार हैं, जैसे चाहे फैसला लें, मगर ये मिल्लत का मसला है, आज़ादारी है, इमाम हुसैन का पूरी कौम का मसला है। लिहाजा जो उलमा के बयान आएंगे उसके बाद आप लोग कदम बढ़ाइएगा। एक सलवात पढ़ें खुदा। अज़ीज़ान ईमान, मरहूम की रूह शाद हो जाए, खुश हो जाए, इसलिए मैंने सरकार बाबुल हवाइज के सिलसिले से ये फ़िक्रा सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या अम्मुना अल अब्बास। और फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो चचा अब्बास पर। ये कोई मामूली मंजिल नहीं है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, मैंने बारहा पढ़ा है कि मनसब के एतबार से ना आप नबी हैं ना इमाम,
مگر عظمت کے اعتبار سے آپ کے دامن کردار پر ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے. یہ آپ کی عظمت ہے. آپ عصمت کے بہت سے درجے ہیں. عصمت واجبی، عصمت غیر واجبی. جناب عباس کے اوپر خاص کر لطف الہی. آپ عصمت غیر واجبی پر آیت اللہ سید عبد الرزاق موسوی المکرم اپنی کتاب العباس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس عصمت غیر واجبی پر فائز تھے. اس کی انہوں نے بہت سی دلیلیں دی ہیں اور وہ دلیل بین الوقت نہیں ہے کہ بیان کی جائے. تو جناب عباس منصب اللہ نے دو رکھے، نبوت اور امامت. اللہ نے حضرت آدم سے ہمارے نبی تک سب کو نبی بنایا 1,24,000 اور ان میں بعض انبیاء کو اللہ نے رسول بنایا، صاحب شریعت رسول بنایا، اولو العزم رسول بنایا، صاحب کتاب. اور انبیاء میں سے ہی اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بھی بنایا. ہمارے رسول بھی امام تھے امت کے، اور سب سے بڑا درجہ آپ کا تھا، سب سے بڑی عظمت آپ کی تھی. اسی امامت کی جانشینی مولا کائنات کو ملی. پھر ہمارے تو یعنی منصب دو ہیں، نبوت اور امامت. حضرت عباس منصب کے اعتبار سے نہ نبی ہے نہ امام. عظمت کے اعتبار سے آپ کے دامن کردار پر ترک اولا کا بھی دھبا نہیں. اور کربلا کے بعد آپ کو ہر امام نے سلام کیا. یہ آپ کی عظمت ہے. آپ کو ائمہ نے سلام کہلوایا ہے. آپ کا نام آتا تھا تو ائمہ رو دیتے تھے. آل محمد ثابت آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس نے میرے جد حسین کے ساتھ وہ ایثار و مواسات کیا ہے جو حق کے ایثار و مواسات تھا. یعنی امام یہ جملہ کہیں کہ جو حق تھا وہ حق ادا کیا میرے چچا عباس نے میرے جد حسین کے ساتھ. تو یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے. جناب عباس کو مولائے کائنات نے خدا سے مانگا، دعائیں کی. یعنی دعا کرنا سیرت انبیاء ہے، دعا کرنا سیرت ائمہ ہے. یہ بھی عظمت آپ دیکھیے کہ گھر میں دو بیٹے موجود ہیں اور دونوں صاحبان منصب ہیں. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام صاحب عصمت ہیں، عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، منصوص من اللہ امام ہیں. ان کے ہوتے ہوئے منصوص من اللہ امام مولا کائنات خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہیں رات بھر عبادت کے بعد راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات کی ریش مبارک سے آنسو اس قدر ٹپک رہے تھے کہ مصلی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. جب یہ عالم ہوتا تھا اس وقت علی فرماتے تھے بارے الہا مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو غیرت دار ہو، جو شجاع ہو، جو بہادر ہو میری طرح. یعنی ارباب ایمان میری طرح کا کیا مطلب؟ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو میری طرح ہو. علماء کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا یہ جملہ حضرت عباس کی عظمت کو آشکار کرتا ہے. میری طرح مطلب یعنی جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے ہی حسین کے لیے عباس. یعنی علی رسول کے لیے ایسے ہی تھے، اسی طرح سے اپنی طرح اپنے بیٹے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ حسین کے کام اسی طرح سے آئے جیسے میں رسول. یعنی حسین کی مدد کرنا یعنی اسلام کی مدد، حسین کی مدد کرنا یعنی خدا کی مدد، حسین کی مدد کرنا یعنی قرآن کی مدد، حسین کی مدد کرنا یعنی تحفظ اسلام، بقائے اسلام. یعنی حضرت عباس کا ایثار و کردار اسلام کے تحفظ میں اہم کردار رکھتا ہے. ارباب ایمان جناب عباس کو علم لدنی اللہ نے عطا کیا بوسیلہ امامت. آپ علم لدنی پر فائز تھے جبکہ یہ علم اللہ نے مخصوص
صاحبان منصب کے لیے رکھا ہے، یعنی اس علم میں بھی درجے ہیں انبیاء اور ائمہ کے لیے، مگر جناب عباس نہ نبی ہے نہ امام، مگر آپ نے اپنے بابا سے علم لدنی حاصل کیا، اپنے آقا حسین سے، اپنے آقا حسن سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، پانچ اماموں سے جس ذات نے علم کسب کیا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے آپ کا لقب باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج بہت سے علماء کا بیان ہے کہ رسول خدا نے بشارت دی تھی اس لقب کی حضرت عباس کو۔ صدیقہ طاہرہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ارباب ایمان، شجاعت کی اس منزل پر آپ فائز تھے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوتے تھے، جنگ صفین میں آپ کی شجاعت کا منظر، تو کہتے ہیں جو انداز بابا کا تھا وہی انداز حضرت عباس کا بھی تھا۔ جناب عباس چشمے زدن میں گھوڑے کی پشت سے اپنے جسم کو دائیں طرف سے اپنا رخ بائیں طرف پھیر دیتے تھے، ہوا بھی اتنی تیز نہیں چلتی۔ یہ کمال فن حرب و ضرب تھا حضرت عباس۔ جس طرح مولا کائنات نے دشمن پر دوسرا وار نہیں کیا، حضرت عباس نے بھی کسی دشمن پہ دوسرا وار نہیں کیا۔ یہ ہے شجاعت کا عالم۔ شجاعت کا یہ عالم ہے کہ مولا نے بعد خیبر 2 انگلیوں پہ اٹھایا، آپ نے 2 لاکھ کا لشکر اپنی پلکوں کی شجاعت پر روک دیا۔ یہ ہے شجاعت کا عالم۔ تاریخ کا ایک واقعہ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت قافلہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے آ کر چلا، امام حسین علیہ السلام نے قافلے کو آراستہ کیا، مطالبہ بیعت ہے آپ سے، آپ نے یزید کی بیعت پر ٹھوکر ماری، اور آپ کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے غیرتوں کو جگاتا رہے گا، حمیت کو بیدار کرتا رہے گا۔ مولا کا یہ پیغام ہر صاحبان غیرت کے لیے ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی جس شخص کے دل میں بھی غیرت حسینی ہے وہ کبھی باطل کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے سر سولی پر چڑھا دیے جائیں، ہمارے جسموں کو دار پہ لٹکا دیا جائے، مگر ہم کبھی مذہب کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور کبھی آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم کم ہیں، کم تو ہم ہمیشہ تھے، قلت میں ہم ہمیشہ تھے، مگر جیت ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام قیامت تک بازگشت کرتا رہے گا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین فرما رہے ہیں کہ جو بھی حسینیت کو فالو کرتا ہے وہ کبھی یزیدیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے قافلے کو آراستہ کیا اور اپنا ہدف اور مقصد بیان کیا، تمام اہل مدینہ کو بتایا کہ میں بقائے اسلام کے لیے مدینے کو ترک کر رہا ہوں۔ مدینہ چھوڑنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ مدینہ وہ شہر ہے جسے حرم رسول کہا گیا۔ 2 ہی حرم ہے، خانہ کعبہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ رسول اللہ کا حرم۔ یہاں دشمن بھی آ جائے تو اسے پناہ دی جائے۔ ارباب ایمان، امام حسین علیہ السلام مدینے جیسے شہر کو، اپنے نانا کے شہر کو، حرم رسول کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ کس لیے؟ بقائے اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے۔ اسلام کے اوپر خطرہ آ چکا ہے اور امام حسین روح اسلام ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اسلام کے مقاصد کا خراش نہیں آ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہر کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ جناب محمد حنفیہ، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ فقیہ اہل بیت ہیں، آپ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، سارے شرف ہیں آپ کے،
सारी फजीलतें हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं मौला आप न जाइए। इमाम सैयद फरमा रहे हैं मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, नाना का हुक्म यही है कि मैं तर्के वतन करूं बकाए इस्लाम के लिए। फरमाते हैं आका अगर आप जा रहे हैं तो बहनों को न ले जाइए। फिर मौला ने फरमाया मोहम्मद हनफिया, हुक्म खुदा यही है कि मैं ज़ैनब को साथ लेकर जाऊं। जनाब ज़ैनब के अलकाबात में से एक लक़ब है शरीकतुल हुसैन। आलम सर में ज़ैनब ने बकाए इस्लाम का वादा किया है। और मोहम्मद हनफिया से इमाम सैयद फरमा रहे हैं मोहम्मद हनफिया, मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, हुक्म खुदा यही है, नाना का हुक्म यही है कि मैं ज़ैनब को साथ ले जाऊं ताकि मेरे मकसद की नशरो इशाअत हो सके। अब हज़रत ज़ैनब समझ में आई, अरबाब ईमान, काफिला तैयार हुआ। मदीने से जब काफिला चला है तो ज्यादा लोग नहीं है, बनी हाशिम है, उलमा मौजूद है, मौलाना अस्करी साहब किबला, मौलाना फिरोज हैदर साहब किबला, दो बुजुर्ग आदमी दीन यहाँ मौजूद है। काफिला जब मदीने से चला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम अहले मदीना को अपने मकसद से आगाह कर दिया, मगर करबला में वही आया कि जो आलम सर में हुसैन के हाथ पर करबला के मकसद पर प्रेरित किए हुए। हर कोई मदीने से नहीं निकल रहा। जवानों ने बनी हाशिम इमाम हुसैन नाम के साथ, मुखद्दरात इस्मत व तहारत बीवियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा काफिला, ऐसी सज धज का काफिला, ऐसी शान का काफिला कहीं दुनिया में आपने तारीख आदम व आलम में न हुसैन से पहले देखा, न अब तक देखा, न कयामत तक देखने को मिलेगा। इसलिए कि हुसैन जा रहे हैं तो एक मकसद के तहत जा रहे हैं। अब रावी कहता है कि मैंने देखा काफिला तैयार हो गया, इमाम हुसैन नाम नाना की कब्र से, मादर गिरामी की कब्र से, भाई की कब्र से, जन्नतुल बकी से, तमाम चाहने वालों से अलविदा हो चुके। तबर्रुकात, कुछ तबर्रुकात इमाम जो थे, एक रिवायत है कि जनाबे उम्मे सलमा के हवाले किया। आपकी बेटी फातिमा सोहरा जो है उनको भी जनाबे उम्मे सलमा की किफालत में दिया। काफिला तैयार हो गया, सारे जवाना में बनी हाशिम दो रोया, घोड़े की पुष्ट पर बैठे हुए। एक तरफ महमिल है, हौदज है, अमारियां हैं, किनाते हैं, पर्दे हैं, बीवियां हैं, सब बाहिजाब पर्दे में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफिले के आगे अभी एक कुर्सी पर बैठे हुए और काफिला आमादा है चलने के लिए। अब एक शख्स का बयान है, वो कहता है कि मैं बैरून मदीना से ताल्लुक था मेरा, मैं मदीने से बहुत दूर के फासले पर रहता था, मैं मदीने के बाजार से तिजारत करता था, अहले मदीना से मैं अपने माल को लाकर मदीने में बेचता था और मदीने से माल खरीद कर अपने यहाँ ले जाकर फरोख्त करता। वो कहता इत्तेफाक से मैं उसी दिन मदीने में पहुंचा, तो जब मैं पहुंचा तो मैंने अजब मंजर देखा कि बाजार मदीना मौकूफ है, बंद है, और मदीने में हस्बे मामूल सन्नाटा है, जबकि अहले मदीना की कोई तातीर का, छुट्टी का दिन भी नहीं था। वो कहता है कि मैंने जब देखा कि बाजार मौकूफ हैं, लोग नजर नहीं आ रहे हैं, कहता मैंने दरियाफ्त किया कि आज क्या मामला। तो मुझे एक शख्स ने बताया कि आज हमारे ऊपर गम का पहाड़ टूट गया। वो शख्स कहता, मैंने कहा वो क्या? कहा कि आज नवाज़ रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तर्के वतन कर रहे हैं। वो कहता है कि मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और तेज रफ्तार मैं मोहल्ले बनी हाशिम में मस्जिद नबवी के पास पहुंचा। वो कहता है मैंने अजब मंजर देखा कि एक काफिला है जो तैयार है, आमादा है। वो कहता है कि मैंने अजब मंजर देखा तो मैंने लेजाम फरस, घोड़े की लेजाम खींच ली और मैंने अपने दोनों कदम रिकाब में देकर, जोर देकर मैं खड़ा हो गया अपने घोड़े की पुष्ट पर। और कहता है कि मैंने देखा
कि मजमे कसीर है, अमोहे कसीर है, लोग हाथों को मल रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, और एक बुजुर्ग शख्सियत जिनके चेहरे से नूर आश्कार है, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ से घोड़े की पुष्ट पर जवान राना घोड़े की पुष्ट पर बैठे हुए हैं, और एक तरफ हौदा जमाली महमिल मुखद्दरात बैठी हुई हैं। मैंने पूछा, दरियाफ्त किया कि ये बुजुर्ग शख्सियत जो कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, मुझे बताया गया यही फर्जंद रसूल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहता मुझे सारा माजरा बताया गया कि यजीद मलऊन ने इनसे मुतालिबा बैअत किया है और नवासे रसूल ने बैअत से इनकार कर दिया है और इस्लाम बचाने के लिए तर्क मदीना कर रहे हैं। अब वो शख्स कहता है, हजरत अब्बास की शजाअत का आलम, वो शख्स कहता है कि मैंने देखा कि दोनों तरफ से जवानाने बनी हाशिम घोड़े की पुष्ट पर बैठे हैं। वो शख्स कहता है कि मैं ये नहीं तय कर पा रहा था कि इन जवानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, सबसे ज्यादा शजा कौन है, सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। इसलिए कि मैं जिस जवान को भी देखता था तो मुझे ऐसा ही लगता था कि शजाअत में ये आखिरी मंजिल पर फायज है, बहादुरी में ये आखिरी मंजिल पर फायज है। वो कहता है कि मैंने सारे जवानों के चेहरों के नूर को देखा। उसके बाद कहता है मैंने काफिले की आखिरी सफ पर मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि काफिले के दाहिनी तरफ आखिरी घोड़े की पुष्ट पर एक जवान बैठा हुआ है जिसके चेहरे से नूर और शजाअत आश्कार है। दाहिनी तरफ एक तवील क़ामत दराज जवान घोड़े की पुष्ट पर बैठा हुआ है, उसके भी चेहरे से शजाअत और हाशमी शजाअत आश्कार है। मैंने शख्स से पूछा कि ये जवान कौन है तो मुझे बताया गया ये अली इब्नुल हुसैन है, ये अली इब्नुल हुसैन है। मैंने पूछा ये बाईं तरफ जो जवान घोड़े की पुष्ट पर कौन है तो मुझे बताया गया ये अब्बास इब्ने अली हैं। वो कहता है कि मैंने उस शख्स से कहा कि मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि इसमें ये जवान ज्यादा सजा है या ये जवान ज्यादा सजा है। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं वहां पर होता तो उस ताजिर से यही कहता कि तुझे अंदाजा नहीं है, तुझे मारिफत नहीं है। अगर मैं होता तो उससे यही कहता कि जब शजाअत तय करे सब्र में ढल जाए तो सैयद सज्जाद से बड़ा कोई शजा नहीं है। जब शजाअत तय करे वफा में ढल जाए तो रूए जमीन पर अब्बास से बड़ा कोई शजा नहीं है। एक सलावत पढ़ते काफिला चला। काफिला 2 मुहर्रम को वारिद मदीना हुआ, खैमे नस्ब हुए, खैमे हटाए गए, शबे आशूर आ गई। जब शबे आशूर आ गई इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम आप मशीयत इलाही के तहत रोजे आशूर आप बीमार थे, शबे आशूर आप बीमार नहीं थे। रिवायतें बताती हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब बावफा को आजमा चुके और उधर फौज यजीद बढ़ती चली जा रही है और इधर कुल 72 लोग, और उनमें भी 82 साल से लेकर 6 महीने तक, 72 में 82 साल से लेकर 6 महीने तक के लोग। इधर मकसद है, इधर मकसद है इमाम हुसैन इस्लाम का। अब ईमान कहते हैं कि शबे आशूर इमाम हुसैन ने जब चिराग बुझाया और कहा कि मैं तुम्हारी गर्दनों से बैत वापस लेता हूं, चले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग खुद बुझाया था और थोड़ी देर गुजरी, चिराग बुझाया खुद इमाम ने और इमाम
امام حسین نے فرمایا بھیا عباس چراغ جلا دو. کیا عجیب فلسفہ ہے. چراغ بجھایا امام نے خود اور جلانے کے لیے کہا حضرت عباس سے. یعنی امام حسین اسلام حضرت عباس ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا مجھے چھوڑ کر ولو چلی جائے مگر عباس وہ ہے جو کسی منزل میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا. چراغ بجھایا خود, جلانے کے لیے حضرت عباس سے کہا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تقریر کی ہے حضرت عباس نے کہ آقا آپ کو چھوڑ کے جانے کا کیا مطلب ہے. جس نے آپ کو چھوڑ دیا اس نے کیا کہا. جس نے آپ کو چھوڑ دیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا, اس نے رسول کو چھوڑ دیا, اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. یعنی حسین روح اسلام ہے. اس کے بعد جناب زہیر بن خان نے تقریر کی مولا یہ میری تلوار ہے, آپ حکم دیں تو میں اپنی تلوار سے اپنی گردن کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھوں. یعنی ایسے ایسے اصحاب تھے امام حسین کا. کہتے ہیں یہ ساری تقریریں ہو چکی ہیں. امام زین العابدین صاحب خیمے میں ہیں. امام زین العابدین اسلام خیمے کے دروازے پر آئے اور سہیل بن خین خیمے کے دروازے پر ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین صاحب فرماتے ہیں چچا سہیل بن خین یزید ملعون کی فوجیں کتنی آ چکی ہیں؟ 30,000, 60,000, 90,000, 1,20,000. امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ آپ فرماتے ہیں چچا زہیر ابن خین ہے کاش کے کل صبح کو اگر میرے بابا اس وقت مجھے اور چچا عباس کو, ایک امام دیکھیے حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے اور چچا عباس, کسی اور کا نام نہیں لیا, فرماتے ہیں کہ مجھے اور چچا عباس کو اگر میرے بابا اجازت دے دیں واللہ, امام نے شرعی قسم کھا کے فرمایا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہم اور ہمارے چچا عباس اپنے بابا کی فتح کا پرچم ابن زیاد کے دارالامانہ پر کوفے پہ لہرا دیں. یہ ہے شجاعت حضرت عباس کا عالم. ارباب اعضاء حضرت عباس کو دفاعی جنگ کی اجازت, جنگ کی اجازت ملتی تو کربلا کا نقشہ بدل جائے. اگر جنگ کی اجازت ملتی امام حسین نام کی طرف سے کربلا کا نقشہ بدل جاتا. کربلا آج جہاں پر ہے کربلا شاید وہاں پر نہ ہوتی, مگر حسین کو مقصد درکار تھا, حسین کو بقائے اسلام تھا. ارباب ایمان جناب عباس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ فرات پر آئے ہیں, میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ عمر سعد ملعون نے دونوں گھاٹ میں 4,000 لشکر متعین کیے تھے مگر آمد حضرت عباس سے کوئی ایک پرندہ بھی نظر نہیں آیا, کوئی ایک پرندہ بھی نظر نہیں آیا. یہ ہے شجاعت کا عالم. کہتے ہیں جب آپ پانی بھر کر پلٹ رہے تھے, جب فوج اشکیا یہ سمجھ گئی کہ عباس چلے گئے ہیں تو کچھ گھاٹ پر آئے. کہتے ہیں جب حضرت عباس نے دوبارہ پلٹ کے گھاٹ کی طرف دیکھا تو دہشت کا عالم یہ تھا کہ فوج یزید نہر فرات میں ڈوب ڈوب کر مر گئی. حضرت عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے خوف کے سبب فوج یزید دریائے فرات میں ڈوب ڈوب کے مر گئی. اگر اس عباس کو اجازت ملتی جنگ کی تو کیا منظر ہوتا. ارباب اعضاء ہم حضرت عباس کی عظمت کو پہچانیں کہ حضرت عباس کی ذات کا نام ہے. عباس علی کی تمنا, عباس اہل حرم کی دھارس, عباس حسین کی کمر شجاعت کا نام. اللہ اکبر. ارباب اعضاء راوی کہتا ہے میں نے کربلا میں حسین کو 2 منزلوں پر اتنا شدید گریہ کرتے ہوئے دیکھا کہ حسین کو میں نے کسی اور منزل پر اتنا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے کہ پہلی منزل وہ تھی جب حسین عباس کے لاشے پر آئے
और दूसरी मंजिल वो थी कि जब अली अकबर का लाश का नाम उठा रहे। अल्लाह अकबर। रावी कहता है कि मैंने अब्बास के लाशे पर हुसैन को इस हालत में देखा कि आप अपनी आंखों के अश्क कभी यासीन से खबा के साफ कर रहे थे, कभी खबा के दामन से साफ। अरबाबे अदा, मैंने मजलिस का इंतखाब इसीलिए किया ताकि मरहूम की रूह खुश हो जाए। आप हजरत अब्बास के फजाइल भी बहुत खुश होकर सुनते थे। मरहूम अमीर हैदर साहब और हजरत अब्बास के मसाइल पर आप गिरिया भी बहुत करते थे। इसीलिए मैंने इंतखाब किया। वक्त कम था इसलिए मुख्तसर वक्त में मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। अरबाब अज़ा, जब तमाम अरबाब हुसैन शहीद हो गए और हजरत अब्बास मैदान में आए, अरबाब अज़ा सारी रिवायत छोड़ते हुए जब आपने मश्क भरी, मश्क भरने के बाद आप बैठे और कहते हैं उमर साद मलऊन अपनी फौज को हुक्म दे रहा कि पानी खयाम हुसैन में किसी सूरत में पहुंच नहीं पाए। और हजरत अब्बास बच्चों से वादा करके आए हैं। जनाब सकीना जब तमाम बच्चों को जमा किए हुए फरमा रही है, बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा वफादार है, मेरा चचा वादा करके गया है, पानी आ रहा होगा। मखातिब लिखते हैं कि तमाम बच्चों में असहाबे हुसैन में और इत्फाल हुसैन में सबसे ज्यादा जो बड़ी थी वो जनाब सकीना थी और बच्चे जनाब सकीना से छोटे थे, इसलिए सारे बच्चे जनाब सकीना का हल्का किए हुए थे कि कोई कहता था बहन पानी कब आएगा, कोई कहता था बहन पानी कब आएगा। जनाब सकीना हर बच्चे को ये दिलासा दे रही थी, मेरा चचा वफादार है, पानी जरूर आएगा, मेरा चचा वादा करके गया है। उमर साद मलऊन ये चाह रहा है कि पानी किसी सूरत खैमे हुसैन में न पहुंचे और हजरत अब्बास को ये फिक्र है पानी किसी भी तरह खैमे में पहुंच जाए। अरबाब अज़ा, हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और चाहते हैं कि खैमे की तरफ बढ़े। कुछ दूर आगे चले थे कि इतने में हकीम इब्ने तुफैल मलऊन ने तलवार का एक ऐसा वार किया कि आपका दायां बाजू शहीद हो गया। अरबाब अज़ा, अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-मुस्री मुकर्रम कहते हैं कि जिस तरह जंग मौता में हजरत जाफर तैयार के दोनों बाजू शहीद हो गए थे, बाएजाज अल्लाह की तरफ से हजरत जाफर तैयार ने आलम को गिरने नहीं दिया था, अपने सीने पर संभाला था। करबला में उसी तरह हजरत अब्बास ने भी आलम को गिरने नहीं दिया। बाएजाज खुदा हजरत अब्बास ने बाजू की शहादत के बाद आलम को सीने से संभाला। अल्लाह शजात अब्बास। अरबाब अज़ा, जब दोनों बाजू आपके शहीद हो गए, अरबाब अज़ा आलम को सीने पे संभाला। कहते हैं कि हुरमुला मलऊन ने एक ऐसा तीर मशके सकीना पे मारा। अरबाब अज़ा एक ऐसा तीर मारा हुरमुला मलऊन ने मशके सकीना पर। जब मशक छिप गई, रावी कहता है कि जब मशक छिप गई तो हजरत अब्बास की आह टूट गई। हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को खैमे के बजाय फिर दरिया की तरफ मोड़ दिया और तीरों पर तीर आने लगे, तलवारों के वार होने लगे। अल्लाह अकबर, कसरत से तीर आते थे, आप तीरों को अपने सीने पर रोकते थे। अरबाब अज़ा, एक मलऊन ने ऐसा गुर्ज़े आहनी मारा कि आपका सर मुबारक जख्मी हो गया। अरबाब अज़ा, करबला के मैदान में किसी भी शहीद पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हजरत अब्बास पर हुआ है। अरबाब अज़ा, मालूम है करबला का हर शहीद जब घोड़े से गिरा है तो हाथों का सहारा लिया है, मगर अरबाब अज़ा अब्बास वो हैं कि जिनके बाजू पहले शहीद हो गए थे, सीने पर तीर पेवत थे, इतने तीर पेवत थे कि आपका सीना नजर नहीं आ रहा था। अब तसव्वुर शर्त है। चौथे इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो चचा अब्बास पर कि करबला के मैदान में जब भी कोई शहीद घोड़े की पुष्ट से गिरा तो हाथों का सहारा लिया, मगर चचा अब्बास इतने बेकस थे, इतने मजबूत थे कि जब घोड़े की पुष्ट से गिरे, मुंह के बल जमीन करबला पर आए तो सीने की हड्डियां टूट गई थी। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम हजरत अब्बास के। अरबाब अज़ा, हजरत अब्बास
घोड़े की पूंछ से जमीन पर आए, एक आंख में तीर है, एक में खून भरा हुआ है। हर शहीद ने आका हुसैन को पुकारा, हजरत अब्बास ने भी पुकारा, आका मदद को आइए, आका खबर लीजिए। अरबाब अज़ा मालूम है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत है कि हजरत अली अकबर पहले शहीद हुए हैं, हजरत अब्बास बाद में। एक रिवायत है कि हजरत अब्बास पहले शहीद हुए हैं, अली अकबर बाद में शहीद हुए हैं। इस रिवायत के मुताबिक अली अकबर साथ साथ हैं। अरबाब अज़ा तारीख कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब हजरत अब्बास ने मक्तल से पुकारा तो हुसैन ने अपने दोनों हाथों को कमर पे रखकर आप जमीन पर बैठ गए और आवाज दी, या अखी अलआन इनकसरा ज़हरी। अरबाब अज़ा आप उलमा से सुनते हैं ना, या अखी अलआन इनकसरा ज़हरी, भैया बात तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। अरबाब अज़ा ये फिक्रा तो आपने समझ लिया, मरसिए की इंतहा इस मंजिल पर है जो इमाम ने फरमाया वक़ल्लत हीरती, ए भैया अब्बास तेरे बाद मेरी राह चारा बंद हो गई। अरबाब अज़ा इमाम की राह चारा को अब्बास कहते हैं, इमाम की राह चारा को अब्बास कहते हैं। वक़ल्लत हीरती, अब्बास तेरे बाद राह चारा बंद हो गई। अरबाब अज़ा हुसैन मैदान में आए, कुछ दूर बढ़े, क्या मंजर देखा, कदमों को आहट महसूस हुई, भाई का बाजू तड़प रहा था, उठाया सीने से लगाया, आगे बढ़े, दूसरा बाजू नजर आया, उठाया सीने से लगाया। अरबाब अज़ा अरब का ये दस्तूर था कि जब वो किसी की तौहीन उर्फ़े आम में करते थे तो वो जो है उसे उसकी माँ के नाम से याद करते थे। तारीख कहती है कि करबला के मैदान में किसी जालिम की ये मजाल न थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इब्ने फातिमा कहता। हर जालिम इमाम हुसैन को जब भी पुकारा है, उमर साद मलऊन ने जब भी आवाज दी यबना अली कह के पुकारता था, हुसैन इब्ने अली। मगर हजरत अब्बास की शहादत के बाद रिवायत कहती है कि जब अब्बास का बाजू हुसैन उठा रहे थे उस वक्त उमर साद मलऊन ने देखा तो आवाज दी, माज़ा तफ़अल यब्न ज़हरा, माज़ा तक़ूलु यब्न ज़हरा, ए इब्ने फातिमा क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो। तारीख कहती है हुसैन, हुसैन फरात का रुख करके आवाज देते हैं, ए हुर्मत फातिमा अब्बास, ए गैरत फातिमा अब्बास, ए भैया उठो। अरबाब अज़ा अब्बास, गैरत फातिमा का नाम अब्बास है, हुर्मत फातिमा का नाम अब्बास है, हुसैन की ताकत की कमर की ताकत का नाम अब्बास है, बच्चों की ढारस का नाम अब्बास है, सकीना की तस्कीन का नाम अब्बास है, आजतों के दरवाजे का नाम अब्बास है, ज़ैनब की रिदा का नाम अब्बास है, बीबियों की तमन्ना का नाम अब्बास है, हुसैन की आखिरी ख्वाहिश का नाम अब्बास है। हुसैन अब्बास के लाशे के सराहने आए, क्या मंजर देखा। रावी कहता है कि मैंने हुसैन को इतना परेशान होते हुए करबला में कभी नहीं देखा। रावी कहता कि मैंने देखा हुसैन अब्बास की लाश का तिलाया फिर रहे थे, कभी हुसैन अब्बास को देखते थे, कभी अपने को देखते थे और फरमाते थे वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह गुर्बता। हुसैन की गुर्बत अब्बास के बाद है, हुसैन की मुसीबत अब्बास के बाद है। अरबाब अज़ा एक मरतबा हुसैन आलम बेकसी में फरमाते हैं, भैया अब्बास उठो, तुम्हारा आका आया है, क्या उठोगे नहीं। अल्लाह अकबर। एक शख्स कहता है कि मैंने देखा कि हजरत अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके होंठ हिल रहे थे। अल्लाह अकबर। अली अकबर ने जब ये देखा कि चचा के होंठ हिल रहे हैं तो अली अकबर ने अपने कान को चचा के होंठ पे रख दिया। हजरत अब्बास एक जुमला फरमा रहे थे, ए मेरे लाल अली अकबर, बेटा मुझ पे एक एहसान कर। बेटा देख रहा है कि पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मेरा आका मेरे पास है और मैं ताज़ीम को न उठ सका। बेटा मेरे सर को उठाकर मेरे आका के कदमों में डाल दे। अरबाब अज़ा अब्बास ने वसीयत की, हुसैन ने भी वसीयत की, आंख से खून साफ किया, आंख से तीर निकाला। हुक्म इमाम था, भाई कहा, रूह जन्नत को परवाज कर गई। वसीयत थी, आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। अज़्म वसीयत, लाशे को फुरात के किनारे छोड़ दिया।
हुसैन मातम करते हुए खाली अलम लिए हुए अली अकबर आगे बढ़ रहे हैं। हुसैन कबा के दामन से आंसू को पोंछते जाते हैं, कभी आस्तीन से आंसू को खुद करते जाते हैं। जब करीब खैमा हुए सकीना ने अलम आते हुए देखा तो एक मरतबा सकीना ने बच्चों को बुलाया, बच्चों आओ चचा आ रहे हैं, पानी आ रहा होगा अरबाबे अदा। मगर जब खाली अलम अली अकबर ने करीब दरे खैमा रखा, सकीना तड़प गई। जाके फरमाती है बाबा अलम आया, अलमदार कहाँ है, अलम आया, अलमदार कहाँ है। मौला तला के फरमाते हैं ए बेटी तेरे चचा शहीद हो गए। अच्छो जनाबे सकीना ने मंजिल खत्म हो गई। अरबाबे अल्लाह अच्छो जनाबे सकीना ने बाबा से जुमला कहा है, क्या फरमाया? कहती है जनाबे सकीना बाबा ये बताइए आप सुबह से हर शहीद का लाशा लाए और खैमे में रखे, मेरे चचा का लाशा क्यों नहीं लाए? बाबा मेरे चचा का लाशा आप क्यों नहीं लाए? इमाम ने फरमाया ए बेटी तेरे चचा ने वसीयत की थी आका मेरे लाशे को खुराक के किनारे रहने दीजिए, इसलिए मैंने बच्चों से वादा किया था पानी पहुंचाने का। हयात ने वफा न की, मैं पानी पहुंचा न सका, मुझे बच्चों से हिजाब आता है। बस सकीना तड़प के फुरात करू करती है और आवाज देती है चचा आइए। सकीना पानी न मांगेगी, कोई तारीख नहीं बताती कि सकीना ने कब पानी पिया। अरबाबे अदा खबर शहादत अब्बास खैमों में गई, तमाम बीवियों ने ज़ैनब की खिदमत में पुरसा पेश किया। बस जनाब ज़ैनब ने सारी बीवियों से दस्ते अदब जोड़ कर किया, ए रुखैया, ए रबाब, ए नैना, ए उम्मे फरवा, ए उम्मे कुलसूम, ए माँ की घनी फिजा, ए बीवियों अब ज़ैनब को माफ कर दो, इसलिए कि ज़ैनब तुम्हें मदीने से जिस भाई के बाजू की ताकत के भरोसे पर तुम्हारे पर्दे का वादा किया था वो भाई मारा गया, अब वो भाई नहीं रहा। मज़ीद हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास तिलावत फरमा कर बतौर मोहम्मद अलैहि सलाम मरहूम मग़फ़ूर जनाब अमीर हज़रत खान साहब ने लिखा हुसैन खान साहब की रूह को हमारे अल्लाह तेरी बारगाह में बतौर चार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बतौर क़ुरान मजीद, बतौर शुहदाए करबला दुआ है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि मरहूम के गुनाहों को माफ फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और आप सबसे गुजारिश है कि अपनी नमाज़ों में भी दुआ कीजिएगा, इस वक्त भी दुआ कीजिए। आपकी आँखें अश्कालूद हैं। फर्श अज़ा पर रिवायत है कि इमाम हुसैन साहब की मजलिस के बाद अगर कोई शख्स दुआ करता है तो उसकी दुआ अगर वो आप बजानिब हो तो कबूल जरूर होती है। मरहूम के बेटे ज़िया अब्बास उर राशिद बखैर व आफियत रहें जहाँ भी हैं, और परवरदिगार चार मासूमीन की बारगाह और उनके वसीले से कुरान मजीद के वसीले से दुआ है कि परवरदिगार जल्द से जल्द वो अपने घर पलट कर आ जाएं। जल्द से जल्द ए हजरत आदम से हवा को मिलाने वाले, ये हजरत यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, माबूद तेरी बारगाह में दुआ है कि तू जल्द से जल्द मरहूम के फर्जंद को उनके घर तक पहुंचा दे। कोई सबील, कोई रास्ता निकाल परवरदिगार, तो मुसद्दिकुल अस्बाब है, जल्द से जल्द वो अपने घर पर आए।